کول تھامس ایلن نے ہمارے صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ پر تیسری قاتلانہ کوشش کے دوران زمین کی سب سے زیادہ محفوظ عمارتوں میں سے ایک کی سیکیورٹی کو کیسے دھوکہ دیا۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ کیسے، آئیے ہلٹن ہوٹل کے اس 3D ماڈل پر نظر ڈالتے ہیں جسے ہم نے صرف 12 گھنٹے پہلے تیار کیا ہے۔ یہ ایونٹ 2 منزلوں ٹیرس اور کانکورس پر تقسیم تھا۔ مہمانوں کو صرف بال روم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سیڑھیوں کے نچلے حصے پر سیکیورٹی کلیئر کرنی پڑتی تھی، جہاں صدر، خاتون اول اور اعلیٰ سرکاری حکام موجود تھے۔ تو حملہ آور نے ان چیک پوائنٹس کو کیسے بائی پاس کیا؟ در حقیقت وہ محض لاس اینجلس سے سفر کر کے آیا اور ایک عام ہوٹل گیسٹ کے طور پر چیک آن کیا۔ سیکیورٹی میں بہت سے بلائنڈ سپاٹس تھے، بشمول سامنے کے دروازوں پر سامان کی زیرو اسکریننگ۔ جب وہ بالآخر مین چیک پوائنٹ پر پہنچا تو اس نے ایک شاٹ گن، ایک پستول اور کئی چاقوؤں کے ساتھ فائرنگ کرتے ہوئے دھاوا بول دیا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسے روکا نہ جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر سیکریٹ سروس ان سیڑھیوں پر ناکام ہو جاتی تو وہ بآسانی اس راہداری سے گزر کر بال روم تک پہنچ جاتا، جہاں وہ تقریباً یقینی طور پر پوری امریکی قیادت کا صفایا کر دیتا۔ یہ حصہ اول ہے اس منصوبے کے پیچھے کا قاتل۔ 25 اپریل 2026 کی رات کو جو کچھ ہوا اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کول تھامس ایلن کون تھا۔ 11 اپریل 1995 کو پیدا ہونے والے ایلن نے 2013 سے 2017 تک کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں تعلیم حاصل کی، لیکن اس عام سطح کے نیچے کچھ پک رہا تھا۔ اپریل 25 کی شام اپنی کارروائی شروع کرنے سے تقریباً 10 منٹ پہلے ایلن نے خاندان کے افراد کو ایک تحریری بیان بھیجا جس میں اس نے خود کو دوستانہ وفاقی قاتل، فرینڈلی فیڈرل اساسن قرار دیا، ٹرمپ مخالف شدید جذبات کا اظہار کیا اور واضح طور پر کہا کہ وہ انتظامیہ کے عہدیداروں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اس نے اگست 2025 میں قانونی طور پر ایک شاٹ گن خریدی تھی اور 2023 میں خریدی گئی ایک نیم خودکار پستول کا بھی مالک تھا۔ دونوں خریداریوں کے لیے ایف بی آئی کے بیک گراؤنڈ چیک کی ضرورت تھی جس میں وہ کلیئر ہو گیا تھا۔ اس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں تھا، اس کے خلاف کوئی عدالتی حکم امتناعی نہیں تھا، سسٹم میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو اسے خطرے کے طور پر نشان زد کرتی۔ یہ ہمیں دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے، واشنگٹن کا سفر۔ ایلن نے ایونٹ سے ایک دن پہلے جمعے کو واشنگٹن ہلٹن میں چیک آن کیا۔ اس نے لاس اینجلس سے شکاگو تک ٹرین کے ذریعے سفر کیا اور پھر شکاگو سے واشنگٹن ڈی سی پہنچا۔ اسے روکا نہیں گیا، نہ ہی اسے مشکوک سمجھا گیا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص جدا کیے ہوئے، ڈس اسمبلڈ، طویل ہتھیار کے ساتھ اس ہوٹل کے کمرے میں چیک آن کر لے جہاں صدر کی تقریر شیڈول ہو؟ جواب سادہ ہے، کسی نے مہمان کے سامان کی تلاشی ہی نہیں لی۔ جمعہ کی سپہر اس کے بیگ مکمل طور پر بغیر چیک کیے گئے اور ایونٹ کے دن شام صبح کے 5 بجے تک اس کا تمام سامان غیر معائنہ شدہ رہا۔ ایلن نے جمعے کی رات اپنے ہوٹل کے کمرے میں گزاری جہاں اس نے اپنے ہتھیار جوڑے اور انتظار کیا۔ یہاں ہے تیسرا حصہ۔ ڈنر شروع ہوتا ہے۔ رات صبح کے 8 بجے واشنگٹن ہلٹن کا انٹرنیشنل بال روم جو ہوٹل کے نیچے گہرائی میں بنایا گیا ہے 2600 مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایونٹ کے لیے ہوٹل کے لے آؤٹ کو 2 اہم حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ٹیرس لیول اور اس کے بالکل نیچے کانکورس یا نچلی سطح۔ یہ زیر زمین کمرہ وہ مقام تھا جہاں صدر، خاتون اول، نائب صدر، ایف بی آئی ڈائریکٹر، وزیر خارجہ، اٹارنی جنرل، ای پی اے ایڈمنسٹریٹر اور وزیر صحت و انسانی خدمات سب جمع تھے۔ عملی طور پر ریاستہائے متحدہ کی حکومت کی پوری ایگزیکٹو قیادت ایک ہی محدود جگہ میں ایک ساتھ بیٹھی تھی۔ اسی دوران ایلن اپنی حرکت کر رہا تھا۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس نے سیڑھیوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ہوٹل کے کمرے سے ٹیرس لیول تک نیچے آنے کے لیے ایک بیگ میں ہتھیار چھپائے ہوئے تھے۔ وہ اطمینان سے ان سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ وہ بالکل جانتا تھا کہ چیک پوائنٹ کہاں ہے اور وہ بالکل جانتا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو اس نے پیری میٹر کو کیسے توڑا؟ ہم حصہ 4 پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی دی بریچ۔ اپنے کمرے کی چابی کا استعمال کرتے ہوئے مہمان کی طرح ہوٹل کی لابی اور راہداریوں سے گزرا۔ سیکیورٹی کیمروں نے اسے شاٹ گن، ہینڈ گن اور متعدد چاقو لے جاتے ہوئے ریکارڈ کیا جس دوران کسی نے اسے چیلنج نہیں کیا۔ تقریباً رات صبح کے 9 بجنے میں 24 منٹ باقی بجے، ایلن کا سامنا بالآخر بال روم کے دروازوں کے باہر مین میٹل ڈیٹیکٹر اسکریننگ ایریا کے قریب سیکیورٹی سے ہوا۔ وہ ابتدائی سیکیورٹی رکاوٹوں کو عبور کر کے بھاگا اور فائرنگ کر دی۔ کم از کم 2 گولیاں چلیں جب اس نے سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ کیا۔ ایلن کے پکڑے جانے سے ٹھیک پہلے سیکریٹ سروس کے یونیفارم ڈویژن کے ایک اہلکار نے جوابی فائرنگ کی۔ اگرچہ افراتفری میں وہ گولی خطا ہو گئی، لیکن ایلن کو فوری طور پر گھیر لیا گیا، قابو کیا گیا، زمین پر اوندھے منہ لٹایا گیا اور میگنیٹومیٹرز کے بالکل پاس ہتھکڑی لگا دی گئی۔ وہ کبھی بال روم کے دروازوں کے اندر نہیں جا سکا۔ لیکن غلطیاں کیا تھیں؟ یہ ہمیں حصہ 5 کی طرف لے جاتا ہے، سیکیورٹی کی خامیاں۔ کیا غلط ہوا؟ خامی نمبر 1، ہوٹل کے مہمانوں کو استثنیز۔
पूरे सिक्योरिटी प्लान में सबसे बुनियादी खामी ये थी कि रजिस्टर्ड होटल मेहमानों की इब्तिदाई स्क्रीनिंग नहीं की गई थी। खामी नंबर 2, चेक इन पर सामान की स्क्रीनिंग न होना। एलन के कमरे के साथ रहने वाले एक मेहमान ने तस्दीक की कि जुमा को होटल चेक उन के दौरान या हफ्ता की शाम सुबह के 5 बजे तक किसी ने भी सामान चेक नहीं किया था। खामी नंबर 3, मैनिफेस्टो जो बहुत देर से पहुंचा। एलन ने हमला शुरू होने से तकरीबन 10 मिनट पहले अपने खानदान के अफराद को तहरीरी मैनिफेस्टो भेजा। अगरचे उसके भाई ने मकामी पुलिस को मुत्तले किया, लेकिन इंतबाह कार्रवाई के लिए बहुत देर से आया। खामी नंबर 4, बगैर किसी रेड फ्लैग के कानूनी असलहा की खरीदारी। एलन ने अगस्त 2025 में FBI बैकग्राउंड चेक पास करके कानूनी तौर पर शॉटगन खरीदी। इसका पस्तूल भी 2023 में क्लियर शुदा बैकग्राउंड चेक के साथ कानूनी तौर पर खरीदा गया था। सिस्टम में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उसे खतरे के तौर पर जाहिर करती। खामी नंबर 5, सदारती तकरीब की मेज़बानी करने वाला अवामी होटल। ट्रंप ने हमले के फौरन बाद इस कमज़ोरी का बराह रास्त जिक्र किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ये वाक़या व्हाइट हाउस में ज़ेरे तामीर फ़ौजी सतह के टॉप सेक्रेट बॉलरूम के होते हुए कभी पेश न आता। ये हमें हिस्सा 8 की तरफ ले जाता है। क्या होता अगर वो चेक पॉइंट अबूर कर लेता? अगर एलन इन एजेंटों से आगे निकल जाता, या सिक्योरिटी टीम की तादाद कम होती, या वो रद्द-अमल देने में सुस्त होते, तो वो एक ज़ेरे ज़मीन कमरे में दाखिल हो जाता जहां हुजूम के बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक गुंजान ज़ेरे ज़मीन बॉल रूम में एक शॉटगन सबसे ज़्यादा तबाह किन हथियारों में से एक तस्वुर की जाती है। इस कमरे में हलाकतों की तादाद पीरीमीटर के अंदर मौजूद खतरे को बेअसर करने से पहले के चंद सेकंडों में भी नाकाबिले तसव्वुर होती। अगर हमला कामयाब हो जाता तो रियासत-ए मुत्तहिदा को जदीद तारीख के सबसे बड़े आईनी बहरान का सामना करना पड़ता। सदर, नायब सदर और एग्जेक्टिव काबीना का बड़ा हिस्सा एक ही वक्त में एक ही कमरे में नाकारा हो सकता था। लेकिन अगर ये सदर की जिंदगी पर तीसरी कोशिश थी, तो पहली 2 कोशिशों के दौरान बिल्कुल क्या हुआ था? दूसरी कोशिश हमें वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा ले जाती है, जो कि बावकार ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब का घर है। ये खुसूसी प्राइवेट क्लब अपने मेंबरान को आलमी सतह की सहूलियात फराहम करता है, जिसमें चैंपियनशिप गोल्फ के 27 होल्स शामिल हैं। आइए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और शूटर की पोजीशनों का मुआयना करते हैं। इस वक्त मिस्टर ट्रंप 5वें होल पर मौजूद थे, जबकि हमला आवर मुबैना तौर पर करीबी चैन लिंक बाड़ों के पीछे इंतजार कर रहा था। तज्जिए के मुताबिक ट्रंप इस वक्त बंदूक बरदार से तकरीबन 300 से 500 गज के फासले पर थे, जो कि तकरीबन 200 से 457 मीटर बनता है। ये बसरी नुमाइंदगी वाक़े के दौरान दोनों अफराद के दरमियान तरतीब और अहम फासले की वाज़ेह तफ़हीम फराहम करती है। अब जबकि हमने बंदूक बरदार की पोजीशन समझ ली है, हम उसके इक़दामात को जोड़ सकते हैं। वो एक स्याह निसान एसयूवी में आया और कहीं करीब ही पार्क किया, मुमकिना तौर पर तवज्जो से बचने के लिए किसी पोशीदा जगह का इंतखाब किया। वसी पैमाने पर स्काउटिंग के बाद उसने मिसाली मकाम तलाश करना शुरू किया और अपनी नक्लो हरकत को एहतियात से वक्त के मुताबिक तरतीब दिया। उसका मकसद उस वक्त हमला करना था जब मिस्टर ट्रंप गोल्फ कोर्स के 5वें होल तक पहुंचे। इस एनिमेशन में हम सदर को एक गोल्फ कोर्ट में कोर्स के पार जाते देख सकते हैं, जो आने वाले खतरे से बेखबर हैं। वो नहीं जानते थे कि हमलावर गुज़श्ता 12 घंटों से सदर के खिलाफ अपनी बेहतरीन शॉट लेने का इंतजार कर रहा था। जैसा कि बताया गया है, हमला आवर SKS से लेस था, ना कि AK-47 से, जैसा कि पहले बताया गया था। जैसे ही सदर गोल्फ कोर्ट से बाहर निकले और शॉट लेने के लिए तैयार हुए, एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने कुछ मशकूक देखा। मुश्तबा शख्स ने अपनी राइफल की नाली ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के मुजाफात में चीन लिंक बाड़ के खला से अंदर डाली हुई थी। ये वाक़या तकरीबन रात के 1:28 या रात के 1:29 बजे दोपहर को पेश आया। जैसे ही राइफल की नाली बाड़ से बाहर निकली, सीक्रेट सर्विस ने तेजी से कार्रवाई की। दोपहर तकरीबन रात के 1:30 बजे गोलियां चलाई गईं, जिससे बंदूक बरदार को अपना मंसूबा मुकम्मल करने से पहले ही बेअसर कर दिया गया। मुश्तबा शख्स, जिसकी शनाख्त रायन वेस्ली राल्फ, उम्र 58 साल के तौर पर हुई, उसका मकसद सदमा और दहशत पैदा करना था, और वो अपने गोप्रो कैमरे पर उस पूरे वाक़े को रिकॉर्ड कर रहा था। उसका मकसद अमरीकी अवाम में तकसीम पैदा करना और मुमकिना तौर पर खाना जंगी भड़काना था। स्नाइपर के मकाम का मुआयना करने पर तफ्तीशकारों को 2 बैग और एक सिरामिक टाइल मिली, जो अशिया उसके सेटअप या फरार के मंसूबे का हिस्सा हो सकती थीं। जैसे ही सीक्रेट सर्विस एजेंट ने मुश्तबा शख्स पर फायरिंग की, वो जाए वक़ुआ से फरार हो गया। मुश्तबा शख्स मुमकिना तौर पर उसी स्याह निसान SUV का इस्तेमाल करते हुए फरार हुआ जिसमें वो आया था, और जल्दबाजी में अपना हथियार और दीगर अशिया पीछे छोड़ गया। लेकिन ये सब 13 जुलाई 2024 को सदर ट्रंप पर पहली कातिलाना कोशिश से शुरू हुआ। बटेलर में जिस इमारत पर हमला आवर चढ़ा, वो तकनीकी तौर पर रैली की जगह से बाहर थी,
और सीक्रेट सर्विस ने उसे साफ स्वीप नहीं किया था। ये सिक्योरिटी की खामी थी जिसकी जिम्मेदारी अब भी सीक्रेट सर्विस पर आयद होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि किसी ने ये यकीनी बनाने के लिए चेक नहीं किया कि प्लान पर सही तरीके से अमल दरामद हुआ है या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए तमाम फरीकैन की बुनियादी पोजीशनों का नक्शा बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास सदर डोनाल्ड जे ट्रंप का पोडियम है और उनके बिल्कुल साथ 3 स्टैंड्स ब्लीचर्स हैं जहां मुंतखब सामेईन बैठे हैं। उनके पीछे स्नाइपर टीम है जिसे शुमाली और जनूबी पोजीशनों में तकसीम किया जा सकता है जो 3 इमारतों पर वाक़ हैं। स्नाइपर टीम नॉर्थ पहली इमारत पर वाक़ है, जबकि तीसरी इमारत पर आप स्नाइपर टीम साउथ को देख सकते हैं। उनके दरमियान तकरीबन सैंडविच हुए ये दरख्त हैं जिन्होंने सीक्रेट सर्विस स्नाइपर टीम नॉर्थ से कुछ छुपाव फराहम किया था। आखिर में हमारे पास शूटर है जो इन सीढ़ियों में से एक से ऊपर चढ़ा और अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए उस पोजीशन का इंतखाब किया। ये वही है जो हमला आवर मुमकिना तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। एक आसाम राइफल्स मनफी पिंदरा AR मनफी पिंदरा नीम खुदकार राइफल। तैयार होने पर वो ट्रिगर दबाता है और कंट्रोल्ड अंदाज में 3 गोलियां चलाता है। आइए हर गोली का तफसील से नक्शा बनाएं। चलाई गई 3 गोलियों में से पहली गोली मिस्टर ट्रंप के कान पर लगी। ये वही राउंड है जो ब्लेचर 3 में मौजूद 2 सामीईन को भी लगा, जिससे उनमें से एक की हालत तशवीशनाक हो गई। आइए कैमरे को ऊपरी जाविये पर ले जाते हैं ताकि वो लकीर दिखाई जा सके जिस पर गोली ने सफ़र किया। उसके बाद 2 मजीद गोलियां चलाई गईं। उनमें से एक गोली एक ट्रैक्टर को लगी जिसे स्पीकर्स के लिए एक आर्जी तरतीब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। उन राउंड्स ने एक हाइड्रोलिक लेवर को भी हट किया जिससे वो फट गया और स्पीकर्स तकरीबन गिरने वाले थे। आखिरी 5 शॉट्स शायद सेमी ऑटो मोड में फायर किए गए थे। इन गोलियों में से एक अफसोसनाक तौर पर एक शरीक को लगी और हमारी ताज़ियत उसके ख़ानदान के साथ है। मजमूई तौर पर हमला आवर की जानिब से तकरीबन 7 से 8 गोलियां चलाई गई थीं। आपको बेहतर तौर पर समझने में मदद के लिए यहाँ चलाई गई तमाम गोलियों का नक्शा मौजूद है। हर कोई सीक्रेट सर्विस स्नाइपर के बारे में शिकायत कर रहा था कि उसने शूटर को ठिकाने लगाने में 2 मिनट लगाए। लेकिन आइए स्नाइपर के नुक्ता नज़र से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये दरख्तों की लकीरें हैं जो स्नाइपर टीम नॉर्थ के रास्ते में रुकावट बन सकती थीं, जबकि स्नाइपर टीम साउथ के पास साफ लाइन ऑफ साइट थी। इंटरनेट पर 2 मंजरनामे गर्दिश कर रहे हैं। मंजरनामा नंबर 1 में दरख्त के पत्तों और शाखों ने हमला आवर की पूरी पोजीशन के तकरीबन 90% हिस्से को ढांप रखा था। ताहम एक तजर्बाकार शूटर के लिए उसे संभालना मुमकिन होता। वो शॉट फायर करके खतरे को ख़त्म कर सकता था। आइए मंजरनामा नंबर 2 को देखें। स्नाइपर साउथ से शूटर तक का फासला तकरीबन 600 से 700 फीट था। ये भी एक मुमकिना शॉट है और उसका हिसाब ये लगाकर किया जा सकता है कि स्नाइपर टीम साउथ ने इस रेंज से शूटर को ख़त्म किया। तैयार होने पर उसने अपना शॉट लिया और 0.308 विंचेस्टर राउंड के साथ अपनी राइफल फायर की, जिससे हमला आवर हलाक हो गया। तो शायद दोनों टीमों के दरमियान इस हवाले से कोई गलत फहमी हुई थी कि शूटर को कौन ख़त्म करेगा, जिसके नतीजे में छत पर खतरे की निशानदही होने पर तकरीबन 2 मिनट की ताख़ीर हुई। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। बताया गया कि दूसरी स्नाइपर टीम ने बहुत तेज़ी से रद्द अमल दिया। तकरीबन सुबह के 5:10 पर क्रुक्स की पहली बार एक मुश्तबा शख्स के तौर पर शनाख्त हुई और सुबह के 5:30 बजे पर क्रुक्स को रेंज फाइंडर के साथ देखा गया। सुबह के 6 बजने में 8 मिनट बाकी पर क्रुक्स को सीक्रेट सर्विस ने छत पर देखा। जैसा कि बताया गया, बंदूक बरदार रैली की जगह से बाहर तकरीबन 400 से 500 फीट के फासले पर था जहां ट्रंप तकरीर कर रहे थे। जैसा कि बहस की गई, पुलिस स्नाइपर इस पोजीशन पर मौजूद था। उसके बाद उन्हें अलर्ट किया गया और उन्होंने मुश्तबा हमला आवर पर निशाना बांधना शुरू किया। तैयार होने पर बोल्ट एक्शन राइफल की गोली ने तकरीबन 600 से 700 फीट का फासला तय किया। ताहम ये हथियार 1200 से 1300 गज की हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। ये शूटर की 500 फीट की हद से बहुत ज़्यादा है। ऊपरी जाविये से ये इस तरह नज़र आता है जब हम इस मंजर को दोबारा चलाते हैं कि कैसे गोली मिस्टर ट्रंप से खता हो गई जब उन्होंने आखिरी मिली सेकंड में अपना सर हिलाया। दिलचस्प बात यह है कि ये गोली साबिक सदर को लग जाती अगर उनका सर सामईन की तरफ मुड़ा होता, जैसा कि यहाँ इस विजुअलाइजेशन में दिखाया गया है। इस वक्त ट्रंप एजेंटों के घेरे में ज़मीन पर झुके रहते हैं, जिन्हें रैली के माइक्रोफोन पर यह बहस करते हुए सुना जा सकता है कि साबिक सदर को जाए वकुआ से दूर ले जाने के लिए कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की जाएगी। आइए इस इवेंट को यहाँ फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सुबह के 7 बजने में 20 मिनट बाकी पर साबिक सदर को इस स्याह बख्तर बंद गाड़ी की तरफ ले जाया गया। ये उन्हें तकरीबन 11 मील दूर करीबी बटलर मेमोरियल अस्पताल ले गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मज़ीद हैरत अंगेज़ मवाद के लिए सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पहले हासिल करने के लिए घंटी के निशान को दबाएं। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।